ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.2 ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਅ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਡੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ ਲਾਈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਪੀ ਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਏ ਬੀ ਤੇ ਔਰ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਪੀ ਕਿਊ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵੀ ਔਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈਗੇ ਆ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 1 ਆ। ਐਂਗਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਐਂਗਲ 2 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ 8 ਹੈ, ਐਂਗਲ 7 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆ 1 2 7 ਔਰ 8। ਔਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਆ? 3 4 5 6। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਦੇਖੋ 3 ਔਰ 6 ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਔਰ 5 ਵੀ ਕੀ ਆ? ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਔਰ 8 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2 ਔਰ 7 ਵੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 3 ਔਰ 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ। 4 ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਔਰ 7 ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ। 1 ਔਰ 8 ਵੀ ਕੀ ਆ? ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਗਲ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 6। ਐਂਗਲ 2 ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? ਐਂਗਲ 7 ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਔਰ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਔਰ 7 4 ਔਰ 8 6 ਔਰ 2 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਆ। ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਆਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੇ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 180 ਤੇ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ 4th ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। In figures 1 to 8 a pair of parallel lines are cut by the transversal. Find the A and B given reasons. A and B ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ A ਆ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ B ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ A ਤੇ B ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਐਂਗਲ A ਔਰ ਐਂਗਲ B, ਐਂਗਲ A ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ 40 ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ 40 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 40 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ B। ਐਂਗਲ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਆ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲਸ ਆ। ਸੋ ਐਂਗਲ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ B। ਐਂਗਲ A ਜਿਹੜਾ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ A ਤੇ B ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਇੱਕ 60 ਡਿਗਰੀ। AB ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ A ਆ
एंगल जिहड़े 60 दे अल्टरनेट एंगल हो गए ना, एंगल ए और 60 डिग्री ये अल्टरनेट एंगल होगा। सो जिन्ना 60 डिग्री होगा उन्ना ही ए होगा। सो ए नूं आपां लिख सकते हैं 60 डिग्री क्योंकि एक अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स की होंगे इक्वल, ठीक है। सो जेकर अपने को ए दी वैल्यू 60 आ गई, ए दी वैल्यू 60 आ गई, हुण आपां ए दी वैल्यू 60 आ गई, बी दी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एक। स्ट्रेट लाइन दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 180 डिग्री ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ एंगल ए प्लस एंगल बी, मैं जिदा लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। 180 क्यों लिखा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है। सो इत्थे तुसी स्ट्रेट लाइन लिख देनी है, ए दा एंगल फिल कर देना 60 डिग्री, बी एज इट इज़ रहन देना इज इक्वल टू 180। एंगल बी एज इट इज़ आ गया, 60 डिग्री जिहड़ा है उधरली साइड लै जाना। देखो इधरली साइड प्लस दा सी, इधर जाके काहदा हो गया माइनस का हो गया। सो 180 चो 60 डिग्री माइनस करके बी एंगल फाइंड आउट कर लेना 120। सो एंगल ए 60 आ गया और एंगल बी कितना आ गया 120 डिग्री। नैक्सट देखो थर्ड सम। थर्ड सम दे विच अपने कोल एंगल ए जिहड़ा ते बी फाइंड करना है, एक 80 डिग्री दिता होया। हुण ये देखो एंगल्स जिहड़े वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए ना, सो 80 डिग्री जिन्ना होगा उन्ना ही ए होगा। सो ए दी वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री, ठीक है। उस तो बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये एक की हो गया कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स की होंगे बराबर, सो जिन्ना ए होगा उन्ना ही बी होगा। सो इत्थे मैं लिख सकती हूँ कि ए ते बी जिहड़ा है वो 80 डिग्री है। सो ए एंगल बी 80 डिग्री आ गया एंड एंगल बी भी कितना आ गया 80 डिग्री। नैक्सट उस तो बाद फोर्थ सम। फोर्थ सम दे विच भी अपने कोल एक ए ते बी फाइंड करना, एक 72 दिता होया है। हुण देखो ए जिहड़ा एंगल आ, एंगल ए और 72 जिहड़े आ ये की आ अल्टरनेट एंगल्स आ, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स आ, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। सो जिन्ना 72 इत्थे ए दी वैल्यू फिल कर 72 आ गया अपने को ए भी, एंगल ए कितना आ गया 72, ठीक है। और एंगल ए ते बी की आ वर्टिकली अपोजिट आ, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट्स आ, ये अल्टरनेट, ठीक है, एंगल्स आ। सो ए दी वैल्यू अपने कोल 72 सी, सो बी दी वैल्यू भी कितनी आ गई 72 आ गई क्योंकि ए ते बी की आ वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स आ। सो ए की होंगे इक्वल होंगे। सो ए ते बी कितना आ गया 72 डिग्री। नैक्सट उस तो बाद फिफ्थ सम दे विच देखो, फिफ्थ सम दे विच अपने कोलों ने की दिता, फिफ्थ सम दे विच अपने कोलों ने क्या होया ए ते बी एंगल फाइंड करन नूं एक 100 डिग्री का एंगल दिता होया, ठीक है। हुण देखो जिहड़ा एंगल ए आ और 100 डिग्री आ, ये भी की आपस दे विच अल्टरनेट एंगल्स आ क्योंकि ये इंटीरियर एंगल आ और ये एक्सटीरियर एंगल आ। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स अल्टरनेट आ, ठीक है। सो अल्टरनेट एंगल्स की होंगे बराबर होंगे। एंगल ए कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, ठीक है। सो एंगल ए कितना आ गया अपने को 100 डिग्री। हुण ए एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है ना, स्ट्रेट लाइन ते जिहड़े एंगल्स किहड़े एंगल ए ते एंगल बी। सो आपां नूं एंगल ए तां पता है कितना है 100 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी फाइंड कर सकते हैं, देखो किद्दां फाइंड करना, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 कर देना है। ए दी वैल्यू पता है 100 है, बी एज इट इज़ रह गया 180 इज इक्वल टू। सो 100 जिहड़ा उधरली साइड लै जाना इक्वल टू दी साइड, इधर प्लस दा सी, इधर आके कादा हो गया माइनस दा। 180 चो 100 माइनस किया, बी दी वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। सो ए एंगल जिहड़ा अपने कोल कितना सीगा 100 डिग्री और बी कितना आ गया 80 डिग्री, ठीक है। नैक्सट उस तो बाद सिक्स सम देखो, सिक्स सम दे विच की आ, इहदे विच भी आपां नूं ए ते बी फाइंड करने, एक एंगल दिता होया 102। हुण देखो पहला तो ध्यान दे नाल एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है जिहड़ी कि इन्हां दो लाइनस नूं पैरल लाइनस नूं कट कर रही है। आह वाली जिहड़ी लाइन कट कर रही है ये एक एंगल ए बना रही है, एक एंगल 102 बना रही है। सो ये देखो तुसी जे एक स्ट्रेट लाइन बनती है दैन आपां इहदे तो ए फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन तो किवें फाइंड करते हैं, देखो एंगल ए प्लस 102 डिग्री इज इक्वल टू 180 क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो तुसी ब्रैकेट 'च लिख लेना स्ट्रेट लाइन। एंगल ए पता नहीं सानू 102 नूं आपां उधरली साइड लै जाना 180 की साइड, इधर प्लस दा सी, इधर जाके कादा हो जाना माइनस दा। 180 चो 102 जो माइनस किया 78 आ गया, ठीक है। सो एंगल ए कितना आ गया अपने कोल 78 और बी जिहड़ा एंगल है, एंगल बी किवें फाइंड करना है, एंगल बी जिहड़ा आ वो इस वाले एंगल्स दे जिहड़ा 102 एंगल आ इहदे की है कॉरसपॉन्डिंग है, ठीक है। कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स आ, ठीक है। सो कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स की हुंदे आ इक्वल होंगे, ठीक है। सानू पहला भी दस्सिया सीगा कि ये की आ एक्सटीरियर कॉरसपॉन्डिंग एंगल है, ये की है इंटीरियर कॉरसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। नैक्सट उस तो बाद सैवन सम, सैवन सम दे विच भी एक एंगल दिता होया 62 डिग्री, ए ते बी फाइंड करनी है। देखो अपने कोल एंगल जिहड़ा है बी आ, जिहड़ा एंगल बी आ वो इस एंगल दे 62 डिग्री दे कॉरसपॉन्डिंग आ,
ठीक है। कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स की होंगे बराबर, सो एंगल बी नूं आपां लिख सकते हैं 62 डिग्री। सो देखो 62 डिग्री में लिख दिता। एंगल बी कितना आ गया 62 डिग्री, क्योंकि की है कॉरसपॉन्डिंग एंगल है। उस तो बाद देखो जे ये 62 डिग्री आ जाता है, एंगल ए जिहड़ा आ आपां फाइंड करना है। ए की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन का तुहानूं पता ही है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैं इदां किया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन बनती है। ए की वैल्यू पता नहीं सानू, बी की पता है 62 डिग्री, 180 डिग्री एज इट इज़ लैंथ। 62 नूं उधरली साइड मैं जो लेके गई उदों माइनस का हो गया, 180 चों 62 माइनस किया, ए दी वैल्यू कितनी आ गई 118। ए दी वैल्यू कितनी आ गई 118 आ गई, और बी दी वैल्यू कितनी है 62 डिग्री है। नैक्सट उस तो बाद 8 सम देखो, ये भी ए ते भी फाइंड करना है, तो एक एंगल दिता होया 130 डिग्री। ठीक है, हुण देखो बी ते 130 डिग्री एक ही है, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स आ। वर्टिकली अपोजिट्स एंगल की होंगे बराबर होंगे। ठीक है, सो आप बी नूं भी लिख सकते हैं 130 डिग्री। ठीक है, सो बी की वैल्यू कितनी आ गई 130। ठीक है, 130 आ गई। हुण आप एंगल किहड़ा फाइंड करना है, ए एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हुण ये किवें फाइंड करांगे, देखो ध्यान दे नाल, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, एंगल ए जिहड़े आ एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। देखो आ जिहड़ा एंगल आ मैनू इस तरह किया, देखो एंगल ए प्लस 130 डिग्री कर दो, क्योंकि जिन्ना ए एंगल आ उन्ना ही ए एंगल होगा। ठीक है, जिन्ना ए आ उन्ना ही ए दे जिहड़ा नीचे देखो, क्योंकि आ वाला एंगल जिहड़ा है इक्वल आ। ठीक है, बराबर आ। ठीक है, सो इत्थे अपने कोल 130 आपां लिख सकते हैं। ठीक है, सो ए प्लस 130 देखो स्ट्रेट लाइन दे विच ए प्लस 130 इज इक्वल टू 180 आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहा है। सो 130 मैं उधरली साइड लै गई, माइनस का हो गया, 180 चो 130 माइनस होया, ए दी वैल्यू कितनी आ गई 50। सो एंगल ए कितना आ गया 50 डिग्री, और बी कितना है 130 डिग्री। ठीक है, इस तरह फिफ्थ सम देखो, हुण फिफ्थ सम दे विच की आ, इन अ गिवन फिगर वन एंगल दिता होया है, अपने कोल एक डायग्राम दी हुई है, जिहदे विच आपां सारे जिहड़े आ डिग्री उन्हां दी मैयर करनी है, कैलकुलेट करनी है। जिद्दां एंगल एक आ उहदी वैल्यू 120 दिती हुई है, बाकी आप जिहड़ियां 2 3 4 5 6 7 8 आ उन्हां दा आपां फाइंड करना है की आ। ठीक है, सो सब तो पहला तो तुसीं देखो कि ये जिहड़ी एंगल आ अपने को 1 आ वो 120 आ, ये 120 है। सो ए वाला एंगल 3 दे की आ वर्टिकली अपोजिट्स आ, वर्टिकली अपोजिट आ 1 और 3 एंगल 1 और एंगल 3 जिहड़ा वर्टिकली अपोजिट्स आ। सो आपां इहनूं लिख सकते हैं 3 नूं भी 120। सो 1 ते एंगल 3 कितना आ गया 120। देखो मैं किया होया सम, 1 की वैल्यू 120 है, 1 और 3 की है वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आ, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल बराबर होंगे है। सो 3 नूं भी मैं 120 लिख दिता। उस तो बाद जिहड़ा एंगल 3 आ, एंगल 3 और एंगल 8 आ, ए वाला इंटीरियर एंगल और ए वाला एक्सटीरियर एंगल कॉरसपॉन्डिंग होंगे है। कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स की आ इक्वल होंगे। सो जिन्ना 3 आ उन्ना ही 8 होगा। सो जे ए 120 है दैन 8 एंगल भी कितना हो गया 120, क्योंकि कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स की होंगे आ बराबर होंगे आ। उस तो बाद एंगल एक की एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन दे विच अपने कोल एंगल 7 और एंगल 8 आ। ठीक है, 8 आपां नूं पता है, आपां 7 फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो किद्दां, पहला तो मैं लिख दिता कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स जिहड़े 3 तक कित्थे तुहानूं पता लग जाना है। 1 की पहला वैल्यू दी हुई 120, एंगल जिहड़ा 1 है वो 3 के बराबर आ, क्यों क्योंकि वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आ। सो 1 जिन्ना है उन्ना ही 3 बन गया। 3 ते 8 जिहड़े कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स आ। ठीक है, सो एंगल 3 कितना सी 120, सो एंगल 8 भी कितना हो गया 120। उस तो बाद आपां एंगल हुण करना सी फाइंड 7। सो 7 और 8 जिहड़े एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं 7 और एंगल 8 जिहड़ा आ स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, एंगल 7 और एंगल 8 इन्हां नूं प्लस करके 180 के बराबर कर देना, 180 के बराबर कर दिता। 7 का आपां नूं पता नहीं, 8 की तो आपां नूं पता सी ना 120 वैल्यू आ, वो फिल कर दी इज इक्वल टू 180। सो नैक्सट देखो एंगल 7 एज इट इज़ रह गया, 120 ने जो मैं उधरली साइड लैके गई वो माइनस का हो गया। सो एंगल फाइंड कितना हो गया साढ़े को 60 डिग्री। सो 7 भी फाइंड हो गया। एक बार दोबारा देख लो, एंगल 1 कितना सी 120, 1 और 3 जिहड़े आ ये की आ वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आ। सो जिन्ना 1 है उन्ना ही एंगल 3 होगा। जे 120 है 1 दैन ए भी 120 होगा। उस तो बाद एंगल 3 और एंगल 8 की आ कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स आ। सो कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे हैं। सो जिन्ना 3 है उन्ना ही 8 होगा। सो 8 भी कितना हो गया 120। ठीक है, ये भी 120 हो गया। नैक्सट 7 फाइंड करना सी, 7 दे विच एंगल 8 प्लस करके उन्होंने बराबर कर दिता मैं 180 दे। सो एंगल 7 फाइंड हो गया। 7 कितना फाइंड हो गया 60 डिग्री।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਔਰ 8 ਫਾइंड ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 1 ਔਰ 2 ਵੀ ਫਾइंड ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 120 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਆ ਤੇ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਐਂਗਲ 1 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗਲ 1 ਔਰ ਐਂਗਲ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ 120 ਆ 2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਐਂਗਲ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 120 ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ 2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਐਂਗਲ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਔਰ ਐਂਗਲ 4 ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟਸ ਐਂਗਲ ਆ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟਸ ਐਂਗਲ ਆ ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 2 ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਸੋ 4 ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਥ ਐਂਗਲ ਵੀ ਫਾइंड ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ 5 ਔਰ 6 ਐਂਗਲ ਰਹਿ ਗਏ 5 ਔਰ 6 ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 4 ਆ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਔਰ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ 4 ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਤੇ 5 ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ 7 ਔਰ 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟਸ ਐਂਗਲ ਆ ਸੋ ਜੇ 7 60 ਆ ਦੈਨ 6 ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 60 ਹੋਊਗਾ ਫਾइंड ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ 6 ਐਂਗਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 5 ਵੀ ਨੂੰ ਫਾइंड ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ 5 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 7 ਔਰ 6 ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ 5 ਔਰ 6 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 5 ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਐਂਗਲ 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਸੋ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾइंड ਕੀਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟਸ ਐਂਗਲ ਹੋਣਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗੀ ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਹੀ ਸਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ